Coming to the role of RBI. Now, role of RBI basically means कि RBI क्या क्या करता है. RBI is banker to bank. जैसा कि मैंने बताया, अगर SBI को कहीं से पैसा लेना है, if SBI wants to borrow, they will borrow from RBI. Regulation of the banks and the other entities, बैंक को बंद करना, चलाना, उनके मैनेजमेंट को चेंज कर देना. Yes, RBI can do that. RBI can suspend the chairman of SBI. उसको हटा देगा वो. RBI can look into the auditing reports of a bank. कुछ भी कर सकता है. RBI is a supervision, right? It is the regulator. Lender of last resort. अगर किसी को भी इस देश में, if anyone in this country does not get money, then RBI would be the last option available. And when I say anyone, anyone means banks, governments. Let's say government of Uttar Pradesh. They are looking for money. And they have exhausted all their options. सब कुछ करके देख लिया, उनके पास पैसा ही नहीं मिल रहा है. So they will go for loan from RBI under state development loans. वो बॉन्ड्स इशू करेंगे और आरबीआई से पैसा ले लेंगे. सो आरबीआई इज अ लास्ट रिजॉर्ट. कहीं से नहीं है, ये है. देन रेगुलेशन ऑफ द पेमेंट एंड द सेटलमेंट सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई वगैरह, इन सबको रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई. कोई अदर एंटिटी नहीं आएगी. गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा. इट इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट. सो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट. मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेक्स. सो आपके डॉलर्स, ये काफी न्यूज में है, इस पर हम काफी चर्चा करेंगे. राइट, वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन दिस केस बिकॉज मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेक्स. फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज कि डॉलर्स, एक्सचेंज रेट, राइट, कन्वर्टिबिलिटी, इनकमिंग, आउटगोइंग, हाउ एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमाइंड. इन सारी चीजों के ऊपर हम अच्छे से चर्चा करेंगे इन केस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, द एक्सटर्नल सेक्टर. एंड द अदर सेकेंड लास्ट इज इशू ऑफ बैंक नोट्स. सो आप सभी को पता है जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं, राइट, अब तो 2 रुपए का तो आई थिंक अब आ भी नहीं रहा है, बट 5 रुपी, 10 रुपी, 20 रुपी, सो एंड सो फोर्थ, वो सारे के सारे आरबीआई देता है. कॉइन्स और 1 रुपी नोट वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है. डेट मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कितना कर्जा लेगी, कितना नहीं लेगी, what how much the government is going to borrow from the market, how much it is going to pay back, everything will be managed by RBI because it is banker to the government. yahan likha hai, it is banker to the government. So that's why debt management of the government. This is how RBI's roles are, and we will be discussing all these roles, some in detail and some in lesser detail. So moving ahead with that, issue of currency से start करते हैं. All of you know RBI issue currency, right? So RBI print or issue currency under the RBI Act 1934. This act gives the power to the RBI to issue new currency, right? Manage the old currency. Under the issue department, right? Minimum 2 rupee and maximum 500. 1000 बंद हो गया, 2000 भी बंद हो गया. Previously I used to say 2000 also, but अब वो बंद हो गया, so there is no issue in that. So now minimum is 2 rupee. And the maximum is 500 rupee. The minimum denomination was, previously, maximum denomination that has ever achieved in India was 10,000. 10,000 का नोट भी देता था RBI, right? So, and that too about 70-80 years back. उस वक्त 10,000 का एक नोट was like 1 crore rupees. So I don't know, imagine a situation that 1 crore rupee, a person goes to buy a house and just hand over 1 note. So higher denomination leads to more hoarding of black money. Denomination कम हो तो ज़्यादा अच्छा होता है. But there are many articles which I have been reading across जो ये कह रहा है कि 1000 rupee नोट की ज़रूरत पड़ रही है. Because at a higher transactions, you have to carry a lot of 500 currency note.
तो वो थोड़ा बल्कि हो जाता है और ट्रांजेक्शन को डिनाई करता है, विच एक्चुअली इट इज गुड ऑल्सो बिकॉज इट इज प्रमोटिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस और ई ट्रांजेक्शंस ऑफ द मनी, बट थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं इट इज मिसिंग अप. 1 rupee note and the coins are issued by Government of India under the Coinage Act 2011, but they are circulated by RBI only. तो 1 rupee note जो रेयर है, rarely you will see 1 rupee note, and the coins. Now coins can be of any denomination. Previously we had 25 paisa, 50 paisa. Paisas are gone now. Now the lowest denominated coin is 1 rupee. It can be any other number. कोई भी हो सकता है, एनी अदर नंबर. देखो कोई करेंसी अगर मार्केट में नहीं आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो बंद हो गया है, राइट? बंद करने के लिए यू नीड अ गवर्नमेंट ऑर्डर एंड आरबीआई अप्रूवल फॉर दैट. मार्केट में नहीं आ रहा है, हो सकता है बैंकों में रखा हुआ है या कुछ भी है, राइट? लेकिन अब बेसिकली उन्होंने बंद कर दिया है, राइट? अगर अब कोई 2000 रुपए का ट्रांजैक्शन करेगा, आप करके देख लो, अगर 2000 रुपए का नोट है, आप बाहर जाओ करके देखो, कोई लेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि आरबीआई ने उसको वाइप आउट कर दिया है. 500 और 1000 रुपीज वर बैंड. उसको तो बैन ही कर दिया है, मतलब वो इलीगल टेंडर हो गए. इलीगल टेंडर का मतलब ये है उसको रखना भी अपने आप में क्राइम हो जाता है, और ट्रांजैक्शन में तो यूज ही नहीं कर सकते. अगर इफ यू एवर सी अ करेंसी नोट के ऊपर लिखा होगा आई प्रॉमिस द बियरर अ सम ऑफ, उस पर लिखा रहता है अ प्रॉमिस, कि मैं धारक को, मतलब वो वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं. 500 एंड 1000 जो है उसको हटा दिया गया था फ्रॉम दैट लीगल टेंडर. 2000 इलीगल टेंडर नहीं है, अभी तक उस पर ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं आया है, लेकिन हां 2000 को सर्कुलेशन से हटा दिया गया है. अगर किसी के हाथ में 2000 का नोट मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा. देयर इज नथिंग लाइक दैट. ओके नाउ कमिंग टू दिस. सो कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है अंडर कॉइनेज एक्ट, आरबीआई करेंसी इशू कर रहा है अंडर आरबीआई एक्ट. भाई ये याद रखना, प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स, कि करेंसी इज इशूड अंडर आरबीआई एक्ट, कॉइन्स एंड 1 rupee नोट इज इशूड अंडर कॉइनेज एक्ट 2011. उससे पहले दूसरा कॉइनेज एक्ट था, पुराना वाला. करेंसी इज प्रिंटेड इशूड बाय आरबीआई एज अ लीगल टेंडर एंड कैन नॉट बी डिनाइड, ये याद रखना, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि आप कहीं जा रहे हैं और आपने कहा कि सर हम तो कैश में पेमेंट करना चाहते हैं. 99% केसेस में सामने वाला मना नहीं करेगा, बिकॉज इट कैन नॉट बी डिनाइड. बट समटाइम्स दे कैन से कि नहीं सर, थोड़ा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस करना होगा. वाई? टू रजिस्टर अ ट्रांजेक्शन. 100% कैश ट्रांसफर्स प्रमोट्स इलीगल इकोनॉमी और ब्लैक इकोनॉमी और ब्लैक मनी. दैट्स वाई गवर्नमेंट सेज कि अगर आप बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मोर देन 50,000, तो पैन कार्ड इज इंपॉर्टेंट, और पैन कार्ड की डिटेल्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. लेकिन वहीं अगर आप यूपीआई से 1 लाख रुपए भेजते हो तो पैन कार्ड की डिटेल्स नहीं चाहिए. ऐसा क्यों? बिकॉज जब आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स करते हो यूपीआई से, दैट इज ऑलरेडी बीइंग रजिस्टर्ड. नहीं, अब यू कैन नॉट सबमिट 2000 रुपी नोट एनी मोर. वो गवर्नमेंट ने विंडो बंद कर दिया है. दे ओपन अ विंडो, अब उन्होंने बंद कर दिया है. देखो 2000 रुपीज का नोट इलीगल नहीं है, लेकिन यूजलेस हो गया है. ओके क्या पता फ्यूचर में दे ओपन अ विंडो और फिर से वो सबमिट कर लें, राइट? अभी तो लेटेस्ट तो ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है. सो देन प्लीज रिमेंबर दीज एक्ट्स एंड प्लीज रिमेंबर द प्रॉमिस ऑन अ करेंसी नोट इज अ 100% प्रॉमिस. नोबडी कैन डिनाई दैट. ईच करेंसी नोट इज डिजाइंड बाय सेंट्रल बोर्ड. ये वही सेंट्रल बोर्ड है दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, एंड अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो आपके नए नए करेंसी नोट्स आते हैं, like we have 200, 100, the blue one 100, the yellow one the 200, the green one the 500, ये सब डिजाइंस कौन बना रहा है? सेंट्रल बोर्ड, राइट? एंड द सेंट्रल बोर्ड इज ट्राइंग टू यूज दैट डिजाइन एंड गेटिंग अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट अप्रूव करती है डिजाइन को, आरबीआई अपने आप कुछ नहीं कर रहा है.
RBI alone cannot take all the decisions. They are taking approval from the central government in this regard. While currency notes and digital currency are issued under RBI Act, coins are issued under Coinage Act. On the liability front, for 1 rupee note and the coins, liability is on the Government of India, otherwise RBI. What is liability? Liability basically means, liability क्या है and why liability of currency is on RBI and Government of India. देखो, जब भी RBI या Government of India नया करेंसी इशू करता है, आई एम सेइंग न्यू करेंसी, नॉट द ओल्ड वन, न्यू यानी फ्रेश, बिल्कुल फर्स्ट टाइम, so they have to keep a same amount of assets with them. For example, they are issuing 10,000 rupee notes. ठीक है, क्या करा इन्होंने? 500 के 20 notes they have issued. 500 के 20 notes they have issued. The total amount was 10,000 rupee, right? So 10,000 rupee was the total amount that they have created. ये new money है. This is new money. It is printed in their printing machines. तो जो मिंट होता है, जहां पे करेंसी बनती है, तो वहां पर ये बन रहा है. Now, do you think this 10,000 rupee is not a liability? No. Because equal amount of money is held by RBI. Equal amount of money. अब वो मनी कुछ भी हो सकती है. It can be in the form of gold. RBI पहले 10,000 का सोना खरीदेगा, अपने पास रखेगा. तो जब RBI ने 10,000 का सोना खरीदा है, गोल्ड, if RBI has purchased a 10,000 rupee gold, does that not mean कि ये RBI के ऊपर कर्जा है? It is like a liability on RBI. And secondly, एक दूसरे पर्सपेक्टिव में देखा जाए, so whatever RBI issues in the currency in the form in an economy, RBI जो भी इकोनॉमी में डाल रहा है वो वापस लेगा. It take back in the future. तभी तो सर्कुलेट होगा. अगर RBI सिर्फ इकोनॉमी में पैसा डालता रहेगा और वापस लेगा नहीं, तो इन्फ्लेशन आ जाएगा. सो RBI यूजुअली क्या करता है? दे इशू 10,000 करोड़ और 10,000 रुपी, एंड आफ्टर 1 year दे विल टेक बैक 10,000. उससे क्या होगा? द 10,000 विल क्रिएट 1 crore रुपी ऑफ असेट्स. सुनने में अजीब लग रहा है ना कि 10,000 रुपए 1 करोड़ का काम कैसे कर देंगे? एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं. एंड दिस इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ मनी और वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस. लेट्स से मेरे पास 100 रुपए हैं, ये फ्रेश है, दिस इज फ्रेश अमाउंट, राइट? अभी अभी RBI से पैसा आया है. आई परचेज, मैंने 100 रुपीज का, लेट्स से मैंने फूड ले लिया, ठीक है? आई हैव परचेज फूड, कुछ भी, मैगी, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, वॉट एवर. नाउ दिस 100 रुपी गोज टू, दिस वॉज मी, दिस इज शॉपकीपर, राइट? ये शॉपकीपर है, वो 100 रुपी उसके पास आ गए. शॉपकीपर ने इस 100 रुपए से क्या करा? शॉपकीपर हैज परचेज्ड रॉ मटीरियल फ्रॉम दिस 100 रुपी. तो ये 100 रुपए किसके पास चले गए? टू रॉ मटीरियल ओनर. दिस रॉ मटीरियल ओनर यूज दिस 100 रुपी फॉर, लेट्स से, फ्यूल. उसने पेट्रोल भर लिया अपनी स्कूटी में, पेट्रोल और डीजल. देन पेट्रोल पंप, द पर्सन हु वाज ऑन पेट्रोल पंप, ही यूज दिस 100 रुपी फॉर, लेट्स से, UPI ट्रांजेक्शंस, UPI टू हिज सन. उसने अपने बेटे को 100 रुपए भेज दिए. देखो, एक 100 रुपए कितना काम कर रहे हैं? ट्रांजेक्शन, दे आर जस्ट चेंजिंग द हैंड्स. एक हाथ से दूसरे हाथ में 100 रुपया जा रहा है. इससे क्या पता चल रहा है? इससे यह पता चल रहा है कि 100 रुपए, अगर मैं यहां पे ट्रांजैक्शन खत्म कर दूं, लेट्स से इन्होंने जो बेटे को UPI करा, इस बेटे ने SBI में पैसा जमा करा दिया और SBI से वापस RBI को चला गया, ठीक है?
अब देखो 1 2 3 4 5, सो ये 100 रुपी ने 500 की जीडीपी बनाई है. सो द वेलोसिटी इज 5 टाइम्स, राइट. 100 रुपए ने 5 गुना काम किया है. दैट्स द पॉइंट. इसीलिए आरबीआई जब भी मनी रिलीज करता है कुछ टाइम बाद वो वापस मनी ले लेता है. अगर नहीं लेगा और ये 100 रुपीज अगर हमेशा इकोनॉमी में गए तो ये बहुत इन्फ्लेशन क्रिएट करेंगे. यही है, दिस इज हाउ इकोनॉमी वर्क्स, दिस इज हाउ द मॉनेटरी सिस्टम वर्क्स. देन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर द प्रिंटेड. ये सारे जो आपकी जगह है अलग अलग जगह है, राइट. नासिक है, देवास है. देन यू हैव नोट्स एंड आर ऑल्सो पब्लिश एट भारतीय रिजर्व बैंक नोट्स मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड एट मैसूर एंड सालबोनी. ये मैसूर का तो मैंने खुद ने देखा है. इट्स अ वेरी हाईली सिक्योर्ड प्लेस. आई हैव सीन दिस प्लेस राइट इन मैसूर, दिस प्रिंटिंग हाउस. तो ये बेसिक फैक्ट्स है. यूजुअली आई डोंट थिंक यार वो यूपीएससी विल गो दैट डीपर इनटू द टॉपिक कि वो इतनी डिटेल पूछे. हाउ अ करेंसी इज बीइंग इशूड. अभी हमने देखा कि करेंसी क्या होती है, आरबीआई कौन सी करेंसी इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी करेंसी इशू करता है, कैसे करेंसी सर्कुलेट करती है इकोनॉमी में, क्यों वो लाइबिलिटी कहलाती है, व्हाई इट इज नोन एज अ लाइबिलिटी, एंड द पॉइंट इज कि व्हाई दैट करेंसी इज बीइंग, हाउ द लीगल बैकिंग ऑफ द करेंसी इज, कि वो आरबीआई एक्ट में बनती है या कॉइनेज एक्ट में बनती है. नाउ वी विल सी कि हाउ द करेंसी इज बीइंग इशूड. जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आरबीआई हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, उनके ऊपर एक लाइबिलिटी होती है. इट इज अ लाइबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द आरबीआई टू इशू करेंसी. तो जब भी करेंसी इशू करी जाती है तो उसका बैकअप रखा जाता है. देयर इज अ बैकअप एंड विच इज नोन एज रिजर्व. सो फॉर 100 रुपी, अगर दे वांट टू इशू 100 रुपी, सो देयर इज अ 100 इक्विवेलेंट रिजर्व. सो 100 रुपी का 100 इक्विवेलेंट रिजर्व होगा. इफ दे वांट टू इशू 1 लाख, देयर इज 1 lakh of reserve. 10 crores, 10 crores of reserve. Now the point is कि how this reserve is going to be determined. कि ये reserve determine कैसे होता है, what is the exact amount of reserve that the government of India or the RBI decides. कैसे पता करें? So इसके लिए they use minimum reserve system or MRS. Now minimum reserve system is based on two different categories. First is RBI must keep 200 crore rupees as the minimum reserve. ये तो रखना ही है RBI को. They cannot go below this. इससे नीचे नहीं जा सकते. So RBI will keep 200 crores of reserve, जिसमें 115 crores of gold होगा and 85 crores of foreign currency assets, FCA. It is फॉरेन करेंसी असेट्स. देखिए इस सब का रेफरेंस मैंने यहां लिखा हुआ है, अगर इस पे पीपीटी में नहीं है तो अगर आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहें तो आरबीआई की वेबसाइट्स पे आपको ये सब मिल जाएगा. आरबीआई खुद ये सब कुछ पढ़ाता है. ऑलराइट, आरबीआई की वेबसाइट्स पे आप इन टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं, बहुत डिटेल्ड में लिखा होता है. सो अब अगर कभी फ्यूचर में पढ़ना हो तो यू कैन रीड फ्रॉम देयर एज वेल. तो 115 crores of gold. So basically 200 crore is divided into two parts. 115 crore का तो हो गया गोल्ड, ठीक है, एंड 85 करोड़ के हो गए आपके फॉरेन करेंसी असेट्स, जिसको अभी हम देखेंगे डिटेल में. तो बेसिकली अगर आरबीआई को 200 करोड़ रुपए इशू करने हैं इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, if RBI want to issue 200 crore rupees release 200 crore rupees in the Indian economy, then they must have a backup of, they must have a backup of these two. अब आप कहोगे सर what if the gold is 120 crores, अगर ये 120 करोड़ का हो गया तो क्या हो गया?
द पॉइंट इज मिनिमम रिजर्व, द पॉइंट इज मिनिमम रिजर्व। भाई मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, इतना तो रखना ही है, दिस इज द बेस, इसके नीचे नहीं जा सकते, दे कैनॉट गो बिलो दिस। नाउ यू माइट से कि सर ये तो 850 है, व्हाट इफ इट इज 500 करोड़? अगर 500 करोड़ हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आरबीआई कैन इशू मोर करेंसी। पॉइंट समझ में आ रहा है गाइस? दिस इज मिनिमम रिजर्व, इतना तो रखना है। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल लो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट? जस्ट यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली। लेट्स से you have a good friend and he's a very good friend of yours. अब उसको अचानक से all of a sudden he requires 5,000 rupees from you. ठीक है, आप जब उसको 5,000 रुपीज दोगे, so don't you think you will check your own balance कि भाई मेरे बैंक में कितना है? Do I have reserves? कि if I give him 5,000 rupees and tomorrow I need 10,000, ऐसा है, राइट? सो पॉइंट इज कि जब आप किसी को पैसा देते हो तो आप अपने पास एक बैकअप रखते हो, रिजर्व रखते हो, राइट? सो दैट इज द सेम थिंग, वैसा ही कुछ हल्का फुल्का मिलता हुआ ये केस है। जब आरबीआई इकोनॉमी में पैसा डालता है तो वो पैसा अपने पास भी रखता है, मिनिमम 200 करोड़, मैक्सिमम कुड बी एनी नंबर, इट कैन बी 1,000 करोड़, इट कैन बी 10,000 करोड़, इट कैन बी 1 लाख करोड़। So that's the point. So this is how it is created. Now what is foreign currency assets? Foreign currency assets आरबीआई के पास दूसरे देशों से आया फॉरेक्स है। अब दूसरे देशों से आया फॉरेक्स इज व्हाट? मिनिमम रिजर्व टोटल वैल्यू ऑफ करेंसी इज मिनिमम रिजर्व इक्वल्स टू टोटल वैल्यू ऑफ इशूड करेंसी। नहीं 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 नहीं, टोटल वैल्यू कैसे होगी? इट कैन बी मोर देन 200, इट कैन बी मोर देन 200। डू यू थिंक 200 करोड़ में इंडिया चल जाएगा? जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल कि क्या 200 करोड़ में इंडियन इकोनॉमी चल जाएगी? आई मीन यू कांट बिल्ड अ हाईवे इन 200 करोड़। दिस इज मिनिमम रिजर्व, आरबीआई कैन नॉट गो बिलो दिस, इतना तो रखना ही है एज अ बैकअप। आरबीआई कैन गो अबव दिस, इसके ऊपर जा सकता है। जैसे अगर आज मैं आपको बताऊं तो आज इन टुडेज वर्ल्ड आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी असेट्स जो हैं वो 400 to 500 बिलियन डॉलर्स हैं, बिलियन डॉलर्स, राइट? जस्ट टेक दिस केस, आई एम जस्ट गिविंग यू हाइपोथेटिकल एग्जांपल। आज अगर डॉलर 85 है, आई मीन 87 हो गया है, 85 इंटू राइट 500 बिलियन है ये। सो मल्टीप्लाई दिस, उतने करोड़ रुपए आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी असेट्स में है ऑलरेडी। सो आरबीआई इफ वॉन्ट्स दे कैन इशू दैट मच ऑफ मनी, लेकिन वो करता नहीं है, दे डोंट इशू दैट मच ऑफ मनी, वो उतनी ही करेगा जितनी रिक्वायरमेंट है। बिकॉज अगर सारा का सारा पैसा उन्होंने करेंसी प्रिंट करने में लगा दिया, सो देयर विल बी अ हाइपर इन्फ्लेशन इन इंडिया, 100% पे आ जाएगा इन्फ्लेशन, विच इज अराउंड 4 to 5% राइट नाउ। तो आरबीआई क्या करता है, इतने सारे पैसे में से इतना छोटा सा, इफ दे हैव दिस मच ऑफ मनी, दे यूज ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी टू क्रिएट करेंसी, सो दैट इन्फ्लेशन। अभी आपने देखा ना, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई? प्राइस कंट्रोल। सो प्राइस को कंट्रोल भी करना है, बट थोड़ा थोड़ा पैसा रिलीज भी करना है, सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। एंड आरबीआई इज वेरी गुड इन दैट, इट इज द टॉप परफॉर्मिंग सेंट्रल बैंक ऑफ द वर्ल्ड। 2008, 9, 10 बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। कोविड के टाइम पे दे हैव परफॉर्म्ड रियली वेल। नाउ अब गवर्नमेंट ने कहा कि यार ये तो थोड़ा अनवांटेड सा लगता है, राइट? अनवांटेड इसलिए लगता है बिकॉज गोल्ड की जो प्राइसेस है वो फ्लक्चुएट करती हैं। इमेजिन दिस, इन 1990 इन 150 करोड़ आपके पास, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, 100 केजी और 1000 केजी गोल्ड था, ठीक है?
In 1919, in 115 crores, you can buy 1000 kg of gold or 1 ton of gold. Lekin when you are in 2025, the price of gold has increased. So in 150 crore, how much gold will you have? Let's say 200 kgs only. So government ने कहा यार ये तो it's not a good thing. इससे गोल्ड के रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं क्योंकि गोल्ड की प्राइस बढ़ती जा रही है. तो क्या करें? So they also provided an alternative system to issue currency, and this alternative system is total liability of the issue department. Number one, RBI has departments. RBI has departments. 20 से ज़्यादा डिपार्टमेंट है. There are more than 20 departments, which has, let's say, currency department, right? Also issue department. Then monetary policy department. Then banking department, right? Then general management. Then you have policy research. Then you have statistics department. So RBI has multiple departments. Out of this, the issue department is responsible for printing of money. इसकी responsibility to bring new money into the economy. तो इस डिपार्टमेंट के पास what is the asset of this department and what is the liability of this department? We have to look into this case. ये हमें देखना है कि what is the assets and what is the liability. If the assets are more than liabilities, करते रहो, keep on printing the issue. So here ये कहते हैं कि it should always be equal to the liability, should always be equal to the assets. जब तक ये होता रहेगा, RBI can continue to print the currency or the amount of currency that they wish. अगर liabilities are more than the assets, then they should stop. ठीक है, वो नहीं करना है. Assets क्या है? गोल्ड, फॉरेन करेंसी असेट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, ये सारे इसके असेट्स हो जाएंगे. यहां पर अगर हम आते हैं कि FCA इंक्लूड्स व्हाट? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ IMF मेंबर नेशन, लेट्स से अमेरिका. सो अमेरिकन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो RBI के पास है. डिपॉजिट्स ऑफ अदर सेंट्रल बैंक विथ RBI, लेट्स से बैंक ऑफ लंडन, उसने RBI में पैसा रखा हुआ है. ऐसा होता है, that happens. RBI also keep a lot of balances with the other banks, and other banks keep balances with RBI, so that they can make easy transactions, day-to-day transactions, remittances और बहुत सी चीजें. Bonds of IMF और वर्ल्ड बैंक. अब IMF और वर्ल्ड बैंक के जो बॉन्ड्स हैं वो भी RBI के पास होते हैं. We will read about IMF and World Bank in much detail later on. And special drawing rights, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर पे. So when you will revise all the notes together, आपको और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी कि what is special drawing rights. इसको एक इंटरनेशनल करेंसी की तरह बोला जाता है, एक ऑल्टरनेटिव करेंसी बोला जाता है, या पेपर करेंसी बोला जाता है, या फिर पेपर गोल्ड भी बोला जाता है. तो SDR के तौर पर भी फॉरेन करेंसी असेट्स इंडिया के IMF में रखे हुए हैं. सो ये सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे 85 करोड़ में. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन. मिनिमम रिजर्व मींस दिस इज व्हाट RBI नीड टू कीप मिनिमम. इससे नीचे नहीं हो सकता. इट कैन नॉट बी 199 करोड़, इट शुड बी 200 करोड़. लेकिन इसके ऊपर RBI इशू कर सकता है. ओके, yes, it is the basis for issuing currency. Minimum reserve is the basis for issuing currency. आपको कोई तो बेस बनाना पड़ेगा ना, फाउंडेशन. यू हैव टू क्रिएट अ फाउंडेशन. मिनिमम रिजर्व इज द बेसिस फॉर इशूइंग करेंसी, राइट? देन एज अ करेंसी, बी इट फिजिकल और डिजिटल, इज इशूड अगेंस्ट द मिनिमम रिजर्व. यहां लिखा है इट इज अ लाइबिलिटी ऑन द इशूअर. कोई भी इशू करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करे या RBI इशू करे, वो लाइबिलिटी होती है. वाई इट इज अ लाइबिलिटी? बिकॉज दे हैव टू मेंटेन द सेम अमाउंट इन देयर रिजर्व्स. ठीक है. अब सबसे बड़ा सवाल कि सर
if this crosses 200, so will that 200 be on the basis of foreign currency, gold or anything else? आपने कहा, I said कि 200 is the minimum reserve, ठीक है, and this can be in terms of gold, foreign currency assets, ठीक है. Now let's take a hypothetical situation, एक extreme case that this gold is 115, इसके ऊपर गोल्ड है ही नहीं आरबीआई के पास, आरबीआई डजंट हैव अ गोल्ड बियॉन्ड दिस, देन दिस इज 85 करोड़ एंड आरबीआई डज नॉट हैव एनीथिंग बियॉन्ड दिस. ओके, देन 115 हो गया, 85 हो गया. अब इसके ऊपर क्या करें? इफ ऑल दीज आर एग्जॉस्टेड, अगर आरबीआई के ये दोनों ऑप्शंस खत्म हो गए, यानी आरबीआई के पास इससे 1 रुपया ज्यादा ना तो गोल्ड है और ना ही उसके पास इससे 1 रुपया ज्यादा फॉरेन करेंसी असेट्स है, तो क्या करें? इन दैट केस कम्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके, राइट, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी से पैसा उठा सकता है. आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आएंगी, वो पैसा रिलीज कर देगा. दैट्स द केस. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ आईएमएफ मेंबर्स का मतलब यह होता है कि आईएमएफ के जो मेंबर्स हैं, लेट्स से यूएस, लेट्स से फ्रांस, कोई भी, जापान, भाई हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स हैं आईएमएफ के, इनके गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते होंगे, इनके भी तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं. देखो यार, वी आर इन द प्रीलिम क्रैश कोर्स, तो अब मैं ये नहीं समझाने बैठूंगा कि व्हाट इज गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है. सो गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेसिकली वो है जो आरबीआई या सॉरी गवर्नमेंट इशू करती है पैसा उठाने के लिए. सो लेट्स से अमेरिकन गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू करे, फ्रांस गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू करे, या फिर जापानीज गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशूज करे, और वो बॉन्ड्स आरबीआई के पास है, आरबीआई खरीद सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है? वो है, दैट इज व्हाट आई मीन बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ अदर आईएमएफ मेंबर.